মুখোমুখি নিবেদন করছেন 3 Steps Aviation Academy। সহযোগী নিবেদক সিনহা গ্রুপ অফ কোম্পানিজ, onestopbazaar.com, Oren Media and Entertainment Private Limited, Arohi Foundation of India। সামনে বিধানসভা ভোট এবং বিধানসভা ভোট যতই এগিয়ে আসছে রাজনীতির পারদ কিন্তু ততই চড়ছে। আর রাজনীতির এই ভরা মরশুমে যখন হঠাৎই পাহাড়ের বিমল গুরুংয়ের আত্মপ্রকাশ, এবং বিমল গুরুংয়ের আত্মপ্রকাশই শুধু নয়, তার সঙ্গে তিনি বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলের সমর্থন দাবি করলেন এবং আরও একবার মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জিকে সমর্থন করতে তিনি উদ্যোগী হলেন। আর এতে কিন্তু রাজনীতির এই ভরা মরশুমে এই ইস্যুটা যথেষ্টই পারদ চড়িয়েছে। কিন্তু সমস্যা হলো, এখন পাহাড়ের গার্ডিয়ান বলা যায় এবং গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার প্রেসিডেন্ট বিনয় তামাং, কি হবে বিমল গুরুং এবং বিনয় তামাং? মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি বা কিভাবে সামলাবেন এবং এই সমীকরণটাই বা কি হতে চলেছে? আর আজ তাই আমার সঙ্গে আমি পেয়ে গেছি বিনয় তামাংকে, গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার প্রেসিডেন্ট বিনয় তামাংকে, আর বুঝবো আমরা এই পাহাড়ের সমীকরণটাই। দাদা, আরোহী নিউজে আপনাকে অনেক স্বাগত। হ্যাঁ, আমি প্রথমেই জানতে চাইবো যে আপনি যেটা দাবি করেছিলেন যে বিমল গুরুং এবং রোশন গিরিরা ডাজেন্ট কাম ইন আওয়ার সিলেবাস, আপনাদের সিলেবাসেই নেই, মানে এটা কারণটা কি? মানে এটাকে আপনি কি যুক্তিটা কি দিচ্ছেন এটার পেছনে? If you go back to the total political scenario of Darjeeling Hills and India and North Bengal since 2017, later part of 2017, then all of a sudden these two leaders and along with the other leaders, they have totally vanished from the entire region. Since 21st of October 2020, तो उसके बाद में देखिए वहाँ पे दूसरा पॉलिटिकल पोलराइजेशन आ गया, और अभी जो है तो हम लोग एक ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का अलायंस है। जैसे कि 2019 में भी हम लोग एक अलायंस होके वहाँ पे इलेक्शन में गया था, एंड 2017 से है हम लोग। तो उस दिन से, जब 2017 के एंड से अभी तक हम लोग ने कभी बिमल गुरुंग जी का और रोशन गिरी जी का या उनका बारे में ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया, और हम लोग ने सोचा भी नहीं था। इसलिए मैंने ये बोल दिया कि हम लोग का सिलेबस में रोशन गिरी और बिमल गुरुंग नहीं है। अभी उस टाइम भी नहीं था, आज भी नहीं है, कल भी नहीं होगा। ये हमारा सिलेबस का बात। एक समय तो उन्हीं प्रधान छिलेन, गोरखा जनमुक्ति मोर्चार प्रधान छिलेन उन्हीं एक समय। उस टाइम टिल 2017 तक मैं उसका ही अंडर में था, उसी का एक टीम था, और हम लोग ने काम किया 2007 से 2017 तक, 10 बरस तक। लेकिन जब मूवमेंट वहाँ पे चला गया तो विदाउट एनी डायरेक्शन, विदाउट एनी एक मूवमेंट का भी होते हैं, सब के सलाह मशवरा करके हम लोग मूवमेंट चलाने चाहिए था, लेकिन वो नहीं हुआ। इसलिए हम लोग दो पार्ट हो गया। अब ये तो देखिए पॉलिटिक्स में होते ही रहते हैं। अब जनता दल से भारतीय जनता पार्टी आ गई, ये तो होते रहते हैं। তৃণমূলও হয়েছে, কংগ্রেস থেকে ভেঙে তৃণমূল সৃষ্টি হয়েছে, तो वो तो होते रहते हैं। ये तो पार्ट एंड पार्सल ऑफ पॉलिटिक्स। तो पहले एक ही साथ था, हम लोग अभी एक साथ नहीं हूँ, ठीक है। सो इसलिए मैंने कहा था कि दे आर नॉट इन माई सिलेबस, ये है। ওকে, কিন্তু একটা সময় যেটা দেখা গেছে যে প্রশাসনিক এবং রাজনৈতিক দুটি ক্ষেত্রেই কিন্তু বিমল গুরুংয়ের যথেষ্ট প্রভাব ছিল। তো এখন কি মনে হচ্ছে যে বিমল গুরুংয়ের আত্মপ্রকাশ হঠাৎ করে, এবং তারপরেই কিন্তু পাহাড়ে তার জনসমর্থনে বেশ মিছিলও বেরিয়েছে, প্লাস বিপক্ষেও বেরিয়েছে মিছিল, তো এখন কি মনে হচ্ছে তার কতটা সমর্থন রয়েছে পাহাড়ে? एक्चुअली वहाँ पे देखिए ये মানে কোনো কারিশমা কি কাজ করবে এখনো বিমল গুরুংয়ের? सुनिए, मेरा बात यह है कि वहाँ का पॉलिटिकल सीनियर इज नाउ टोटली चेंज्ड, ओके।
पहले जब 2017-18 में जब बिमल गुरुंग था, वो बोलते थे कि हम लोग जंगल में हैं और वी आर फाइटिंग फॉर द सेपरेट स्टेट ऑफ गोरखालैंड। लेटर पार्ट ऑफ द 2018 एवरीबॉडी सभी को पता चल गया कि वो तो जंगल में नहीं है, वो वीडियो मैसेज भेजना शुरू किया। तब पता चला कि नोएडा है, दिल्ली है, शहर में है, मौज मस्ती कर रहे हैं और इधर बैकपेडल कर रहे हैं। तो उस टाइम से उनका ग्राफ गिरते 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 चला गया था। अभी का आपको मैं 21 अक्टूबर से बात करता हूँ। 21 अक्टूबर सुबह तक, जब तक अपीयरेंस नहीं हुआ था कलकत्ता में, तब तक सेक्शन ऑफ गोरखास लिविंग इन इंडिया, नॉट ओनली दार्जिलिंग बट लिविंग इन इंडिया, उनको एक मसीहा की तरफ से देखते थे कि हाँ एटलीस्ट बिमल गुरुंग इज देयर, ऐसा बोलते थे। क्योंकि उनका एक परसेप्शन था पब्लिक का, गोरखास का, कि सेक्शन ऑफ गोरखास का, कि दे आर फाइटिंग फॉर आवर आइडेंटिटी ना। अभी 2021 में ये 21 अक्टूबर में जब अपीयरेंस कोलकाता में हो गया, उस दिन से ग्राफ देखिए ना, सोशल मीडिया में देखिए, फेसबुक में देखिए, उनका कितना कमेंट आ रहा है, बैड कमेंट, नेगेटिव कमेंट। तो इसके मायने पीपल आर नॉट एक्सेप्टिंग बिमल गुरुंग एज द लीडर ऑफ गोरखास राइट नाउ एट प्रेजेंट। मैं प्रेजेंट का बात कर रहा हूँ ना। 21 अक्टूबर के आगे सम ऑफ द सेक्शन आउट देयर इन द इंटायर, इवन इन आसाम, उत्तराखंड, मुंबई, कर्नाटका, सभी स्टेट में जहाँ पे हम लोग का गोरखा है, उन लोगों का मानना है था कि बिमल गुरुंग हमारा लीडर है, ऐसा है। लेकिन 21 अक्टूबर से अभी 2 हफ्ता हो गया, आपका ग्राफ देखिए तो आपको मिशिल भी देखा होगा दार्जिलिंग, कालिम्पोंग, कर्सियंग, सभी जगह पे ना। वो मिशिल से क्या पता चलेगा? द पीपल ऑफ दार्जिलिंग हिल्स दे आर रिजेक्टिंग बिमल गुरुंग। मैंने नहीं कहा, ये देखिए हम लोग लीडर है, सोकल लीडर। अब लीडर क्या है? सब लीडर जब जनता है तो लीडर है, जनता नहीं है तो लीडर नहीं है। डेमोक्रेसी में है जनता ही लीडर के बना है। पीपल वॉइस इज मोर इम्पोर्टेंट देन लीडर वॉइस ना। अब पब्लिक का जो आवाज़ आ रहा है, गुस्सा जो आ रहा है, उससे पता चलेगा उनका आइडेंटिटी है कि नहीं। तो ये है। তো এই যে বিমল গুরুংয়ের বিজেপির সঙ্গ ছেড়ে, মানে বিজেপিকে এতদিন সমর্থন করছিলেন তিনি, এখন তিনি বলছেন তৃণমূলকে সমর্থন করবে। তো এটাতে কি আপনাকে কি অস্বস্তিতে ফেললো? আপনার কোনো জায়গায় কি সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে এটাতে? ना देखिए, दैट इज देयर डिसीजन ना, उनका डिसीजन था ये, हम लोग का डिसीजन नहीं है। हम लोग आगे से ही 2017 से ही ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस और मिस ममता बनर्जी के साथ में हूँ और साथ में रहेंगे, ठीक है। तो पहले उनका बीजेपी के साथ में था, 2017 से आगे मैं भी उसी पार्टी में था, उसी ग्रुप में था। तो मैं भी आए वो হ্যাঁ, কিন্তু আপনাদের দাবিটাও তো এক, গোরখাল্যান্ড। আপনারও দাবি, বিমল গুরুংয়েরও দাবি। 2008 में 2007 में हम लोग फॉर्म किया, उसके बाद में वहाँ पे मूवमेंट चला गया। और तो 2018 में 6 शेड्यूल को खारिज करना था, वो स्टैंडिंग कमेटी में था। उसका स्टैंडिंग कमेटी का उस टाइम चेयरपर्सन था लेट सुषमा स्वराज जी। तो वहाँ पे हम लोग 6 शेड्यूल खारिज किया, ऑल पार्टी वहाँ पे अटेंड किया था, वो स्टैंडिंग कमेटी बुलाया था। उस दिन से मैं कई बार डेलीगेशन में चला गया, इवन प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर को भी मुलाकात किया था उस टाइम में, ठीक है, होम मिनिस्टर, सभी को मुलाकात किया। और हम लोग ने बात किया कि गोरखास का आइडेंटिटी के बारे में, 11 कम्युनिटीज़ के बारे में, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बारे में कई सारे मेमोरेंडम हम लोग दे दिया। HRD में जब हम लोग का स्मृति जुबिन ईरानी था, उस टाइम कई बार हम लोग मिले। और फाइनेंस मिनिस्टर उस टाइम लेट हमारा अरुण जेटली था, उस टाइम हम लोग मिला था। तो देखिए मेरे को पता था कि हाँ ये वो लोग क्या कर रहे हैं कि जस्ट हम लोग को भुला रहे हैं, ठीक है, ओके हम लोग कर देंगे। अब 2009 में हमारा जसवंत सिंह, लेट जसवंत सिंह वहाँ से मैंडेट लेके गया। 2014 में SS आलोले लेके गया। लेकिन हमारा जो एक ठो काम भी, गोरखालैंड तो दूर का बात हो गया, 11 कम्युनिटीज़ का, सेंट्रल यूनिवर्सिटी का, और दूसरा जैसे कि हम लोग को लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी का डिमांड था। नेपाल जो गोरखास है, हम लोग इंडिया में लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी है, तो उसका देना होगा, हम लोग को लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी का दर्जा भी देना होगा। ये सब नहीं काम किया। इसलिए मेरे को 2017 में जब मूवमेंट शुरू हो गया, तब वहाँ पे आदमी मारा जा रहा था। हमारा पब्लिक
मारा जा रहा था, इनोसेंट पब्लिक मारा जा रहा था, और वहाँ पे स्ट्राइक चल रहा था, भूखा था, कोई काम नहीं था, तब भी दैट टाइम SS Ahluwalia वाज द MP ऑफ आवर एरिया ना। तो उस टाइम अगर अलायंस पार्टी का ऊपर में इतना ज़्यादा मारकाट हो रहा है, सब कुछ डिस्टर्ब हो रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक तो कंडोलेंस मैसेज भी नहीं दिया और एक बात भी नहीं किया, और एक बार MP भी विजिट नहीं किया 105 डेज के दौरान, 3 महीने के दौरान, 3.5 महीने के दौरान। तो उसी टाइम मेरे को लगा कि ये बीजेपी हम लोग को होने वाला नहीं है, इसलिए पहाड़ को बचाने के लिए, गोरखा कम्युनिटी को बचाने के लिए, और दोज भी नॉन गोरखाज है, दोज आर लिविंग इन दार्जिलिंग हिल्स, उनको बचाने के लिए अनित और मैं आगे और बीजेपी को देखा था 9 वर्ष 10 वर्ष तक, उससे तो नहीं होगा। अब इतना ज़्यादा हो रहा है, जब अमित शाह जी इलेक्शन के दौरान कालिम्पोंग में हेलीकॉप्टर में आ सकते हैं 2019 में, तब उस टाइम क्यों नहीं आया फिर, जब क्राइसिस था? तो इसलिए हम लोग डाइवर्ट हो गया, और मैं मिस ममता बनर्जी से हम लोग आके मिला, और उस एक दोस्ती बन गया बस। उसके बाद में वहाँ पे सब शांत हो गया। अभी का सिचुएशन देखिए, बिमल गुरुंग जी इतने दिन तक था, 3 बरस तक वहीं पे शेल्टर था बीजेपी के साथ में, ठीक है। अब शेल्टर होने के बावजूद अब चला आ गया, उसने देखा कि हाँ ये यहाँ बैठ के पोस्ट फायदा नहीं है, तो उसका ऊपर में इतना संगीन आरोप है, केसेस है, तो वो चला आ गया यहाँ पे कलकत्ता में 21 तारीख को। तो ये तो हम लोग ने 3 बरस आगे देखा था ना, अब 3 बरस पीछे बिमल गुरुंग देख रहा है और रोशन गिरी जी देख रहे हैं, तो इससे पता चलता है हु इज मैच्योर्ड इन पॉलिटिक्स। विनय तामांग, अनित थापा और बिमल गुरुंग और रोशन गिरी, हम लोग मैच्योर्ड है। तो पहले हम लोग आगे देखते পেয়েছেন এবং তাই ব্যাক করেছেন। उस टाइम का देखिए रीजन बिहाइंड हम लोग का जो इन्वॉल्वमेंट था स्टेट गवर्नमेंट में, तो उस टाइम मैंने अभी बताया कि वहाँ पर आदमी मारा जा रहा था, स्ट्राइक चल रहा था, खाने का कोई चावल वावल नहीं था, राशन नहीं था, सबका सब वहाँ पे देखिए सिस्टम पूरा डिस्ट्रॉय था। तो इस सबको एक सिस्टम में लाने के लिए, एक मेन स्ट्रीम में लाने के लिए हम लोग ने एक हो गया था, उस टाइम में हम लोग आगे बातचीत किया था। लेकिन अभी देखिए, अभी दार्जिलिंग नॉर्मल है, नॉर्थ बंगाल नॉर्मल है, हाँ। सब चल रहा है। हाँ, कोविड की वजह से स्कूल कॉलेज बंद है, लेकिन रेस्ट लाइफ इज़ ओके। अब क्या ज़रूरी था कि बिमल गुरुंग जी और रोशन गिरी जी कलकत्ता आके फिर मिलने का? देखिए वो तो वेंडिक्टिव मोटिव है, तो ये तो उनका स्टैंड है, मेरा कहना नहीं। तो इसलिए वो 2017 और 2020 का 21 अक्टूबर देखना होगा, इसको थोड़ा देख के चलना होगा। আপনার এবং বিমল গুরুংয়ের যেহেতু স্ট্যান্ড পয়েন্টটা এক, যে গোর্খাল্যান্ড, হ্যাঁ, সেখানে তৃণমূল আপনাদের সহযোগিতা করছে, আপনাদের হাত বাটাচ্ছে, এবং বিজেপি সেটা করছে না সম্ভবত। আপনি এক্ষুনি যেটা বললেন, ক্রাইসিসের সময়ই অমিত শাহ বা কেউ যায়নি পাহাড়ে। তো এখন যদি মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি আপনাকে রিকোয়েস্ট করেন যে হচ্ছে আপনি বিমল গুরুংয়ের সঙ্গে সব বিরোধ মিটিয়ে নিন, আবার এক হয়ে কাজ করুন পাহাড়ের শান্তির জন্য, গোর্খাল্যান্ডের জন্য, আপনি কি করবেন? देखिए मेरा स्टैंड और मेरा पार्टी का स्टैंड जो है, जो हमारा फैक्शन है, ये तो गोरखा मोर्चा 2 फैक्शन है, एक बिमल फैक्शन बोलते हैं, एक विनय फैक्शन बोलते हैं। अब विनय फैक्शन की बात करें तो मैं रिपीटेडली ये बोलते आ रहा हूँ, अभी आपने क्वेश्चन भी किया, तो अभी भी मैं आपको ये बोल देता हूँ कि हम लोग कोई एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म हम लोग शेयर नहीं करेंगे बिमल गुरुंग जी से और रोशन गिरी जी से और उनका ग्रुप से, बस। আচ্ছা, মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির সঙ্গে আপনি আজকে কলকাতায় যার জন্য, এবং মমতা ব্যানার্জির সঙ্গে সিএম মমতা ব্যানার্জির সঙ্গে আপনার মিটিং ছিল একটা, তো সে মিটিংয়ে আর কি হলো? বিমল, আপনি মানে খুব ইয়ে ভাবো কি আপনাকে কোনোভাবে বলেছেন উনি যে হচ্ছে বিরোধ মিটিয়ে নিন? না, देखिए बिफोर कमिंग टू বিমল গুরুংকে নিয়ে কি কোনো কথা হয়েছে? सुनिए, ऐसा है, बिफोर कमिंग टू कलकत्ता आपको एक बात मैं बता दूं, ये मेरा पर्सनल फैमिली मैटर है कि मेरा पिता गुजर गया था 4 तारीख, तो कल 1 महीना हो गया। तो जब अपीयरेंस होने के आगे और अपीयरेंस होने के बाद में भी
एक मेरे को मैसेज आया था और 26 अक्टूबर शी हैज़ कॉल्ड मी, और उसके बाद में ये मीटिंग तय हुआ था। लेकिन मेरा देखिए हम लोग वीकली हमारा प्रेयर होते हैं घर में, तो इसलिए मैंने 1 तारीख मना किया, तो 3 तारीख आ गया। तो उसके पहले एक मैसेज मैंने व्हाट्सअप मैसेज किया था कि ये मीटिंग किस लिए है, तो पीस, मैंने बोला अगर पीस, नॉर्मलिटी और स्टेबिलिटी के लिए है तो हम लोग आएंगे। तो उसी में हम लोग बातचीत किया उस टाइम। मैं सच बताता हूँ क्योंकि कल एक ऑडियो मैसेज आया था बिमल गुरुंग जी का, मैंने सुना कि वो अंदर में क्या हो गया, हाँ क्या ना वो वायरल हो गया था। वो वायरल होके मैंने भी सुना था कि अंदर में दूसरा हो गया और बाहर आके विनय अनित दूसरा बोल रहे हैं। नहीं, मैं उनको भी पता है हमारा सबसे बड़ा मंदिर महाकाल बाबा है, आपको पता है ना, ये चौरस्ता मॉल के ऊपर में सभी लोग वहाँ जाके प्रॉमिस करते हैं। राजू बिस्टर जी भी कब प्रॉमिस किया था 2019 की, महाकाल बाबा के कसम प्रॉमिस करके मैं बोलता था हूँ कि हम लोग गोरखालैंड देंगे, ऐसा ऐसा बोला था। आज उसी मंदिर को मैं प्रॉमिस करके बोलता हूँ कि जब हम लोग 3 तारीख मुलाकात हुआ था तब बिमल गुरुंग और रोशनगिरी का नाम भी नहीं आया, सिर्फ पीस, नॉर्मलिटी and political stability in the hills as well as the plains. তো বিমল গুরুং এর আত্মপ্রকাশের পরেই তো আপনাদের মিটিংটা ফিক্স হলো, আপনারা এখানে এলেন, বিমল গুরুং জবে এলো। आपको if you go back to 30th September का मीटिंग जो एडमिनिस्ट्रेटिव मीटिंग हुआ था उत्तर कन्या में, पता है ऑनरेबल सीएम वाज देयर, सो दैट टाइम हम लोग को भी इनवाइट किया था। हम लोग था वहाँ पे, नरेंद्र थापा था, मैं था, सब था वहाँ पे। 2-3 डिस्ट्रिक्ट का था उस दिन। 29 में 3 डिस्ट्रिक्ट का और 30th में 3 डिस्ट्रिक्ट का था, कालिम्पोंग डिस्ट्रिक्ट, कुचबिहार डिस्ट्रिक्ट और दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट का। तो उस टाइम हम लोग था। तो उस टाइम 30 तारीख सितंबर का बात कर रहा हूँ। उस टाइम आफ्टर मीटिंग सीएम मैडम, मैं, अनित जी मुलाकात हो गया उनका चैम्बर में, उन्होंने बुलाया। तो उन्होंने ऑनरेबल मैडम ने क्या बोली थी कि आफ्टर ये पूजा एक बार हम लोग मिलेंगे कलकत्ता में। देखिए ये तो रूटीन मीटिंग था एक्चुअली। अच्छा, तখন বিমল গুরুং এর কোনো প্রসঙ্গ ছিল না। ऑल ऑफ अ सडन क्या हो गया कि ये एक कॉन्सिक्वेंस क्या बन गया कि बिमल गुरुंग आ गया और इनको बुलाया। ये नहीं है। 30 तारीख सितंबर में, आपको 30 तारीख सितंबर का जब हम लोग का प्रेस हो गया, तब उसके बाद में नेक्स्ट डे जो पेपर देख लीजिए कि हमारा 20 मिनट्स का 1-to-1 मीटिंग हुआ था सेम मैडम के साथ में उत्तर कन्या में। ये लिखा है, आज भी चेक कीजिए, 30 तारीख सितंबर, यही 1 महीना आगे का। तो उसी का फॉलोअप मीटिंग था, एडमिनिस्ट्रेटिव मीटिंग, ठीक है। बट 21 तारीख बिमल जी का जो अपीयरेंस आ गया, तो उसको जोड़ लिया ना इसकी में। तो बिमल गुरुंग जी का बात ही नहीं हुआ, रोशनगिरी जी का बात ही नहीं हुआ। हाँ, इलेक्शन आ रहा है, अभी पूजा का मौसम है और फिर टूरिस्ट आना शुरू किया। तो हाउ टू कीप द एरिया पीस, नॉर्मलिटी एंड स्टेबिलिटी, यही देखना था। इसी के ऊपर में हम लोग का बातचीत हो गया था। अब बोलते हैं कि अब सब एजम्पशन है, अंदर में 40 मिनट बात हो गया, बिमल गुरुंग का ही हो गया, ऐसा बोल रहा है, लेकिन नहीं हुआ। उसके बाद में 10-15 मिनट तो हम लोग जीटीए के बात में बात किया, क्योंकि ये सिंकुना का जो पेंडिंग इश्यूज है। কিন্তু আপনি তো মানে মিটিং এ যাওয়ার আগের মুহূর্তে আপনি এখানে বসে গোরখা ভবনে বসে একটা প্রেস মিট করেছিলেন এবং সেখানে বিমল গুরুং এর সম্বন্ধে সুর চড়িয়েছিলেন। ना ऐसा है। अब देखिए, जब मीडिया का फ्रेंड्स लोग मेरे को पूछते हैं तो आंसर देना ही पड़ता है ना। आज अभी आपने मेरे को पूछ रहे हैं तो आंसर देना। अभी इफ़ यू डोंट, मतलब आप अगर कोई क्वेश्चन रेज नहीं करते हैं तो मैं भी आंसर नहीं देता हूँ। अब क्वेश्चन आप रेज करते हैं, मैं चुपचाप बैठ गया, तो ये भी नहीं होते हैं, फिर दूसरा एंगल से देखते हैं, तो इसलिए ऐसा है। लेकिन उस टाइम फिर बार बार मैं बोल देता हूँ कि वो on 3rd of this month, November, जब नवान्ना में हम लोग का मीटिंग था, चीफ सेक्रेटरी वॉज देयर, प्रिंसिपल सेक्रेटरी जीटीए वॉज देयर, अरब विश्वास जी वॉज देयर, फुल एडमिनिस्ट्रेटिव मीटिंग ছিল সেইটা, वॉज देयर, अनित वॉज देयर, मैं था। तो वहाँ पे सिर्फ का सिर्फ इंटायर नॉर्थ बंगाल में इंक्लूडिंग दार्जिलिंग हिल्स कैसे उनको नॉर्मल से अभी बरकरार रखें, इनको सस्टेन कैसे किया जाए, वो हम लोग का है। लेकिन सभी ने बोला कि বিমল গুরুং का ওকে, আমাদের একটু সময় হয়ে গেছে একটা ছোট্ট বিরতি, তবে ফিরে আসছি এখনই এবং বিনয় তামাংয়ের সঙ্গে কিন্তু পাহাড় নিয়ে আরো কথা হবে। আপনারা কোথাও যাবেন না, প্লিজ সঙ্গে থাকুন।
Wanna fly? Step towards 3 steps. Where we are different. World-class infrastructure, experienced faculties, hygienic atmosphere. We take all necessary precautions against COVID-19. Meet the aviation professionals and build your dream career with 3 Steps Aviation. 3 Steps Aviation! Hip hip! Hooray! Hip hip! Hooray! Welcome to Sinha Group of Companies, your genie in a bottle. Career advancement opportunities in aviation and hospitality. Organic farming, the evolving science of India's healthy future. Digital marketing of the next generation. Income tax consulting and other legal services. Home furnishing and decor, bringing your dream house to life. We know what you desire, so unleash your genie with Sinha Group of Companies and let the magic begin. Sinha Group of Companies, dream with India. এক ডাকেই যাকে পাই, আরোহী ফাউন্ডেশন একেবারেই তাই। 8 থেকে 80-র জন্য এক ডাকে সাড়া দেয় আরোহী ফাউন্ডেশন। দুস্থ মানুষের পাশে দাঁড়ানোর জন্য অঙ্গীকারবদ্ধ আরোহী ফাউন্ডেশন। ছাত্রছাত্রীদের সফল ভবিষ্যতের জন্যই নিবেদিত আরোহী ফাউন্ডেশন। আরোহী ফাউন্ডেশন, solution for every need. Your bazaar, our bazaar. Welcome to onestopbazaar.com, where you can get all your necessary stuff starting from souvenir to t-shirts, shoes and many more handmade antique stuffs are available just under one roof. Our stores are available at airports like Kolkata, Guwahati, Imphal, Bagdogra, and you can also find us at City Center too. We are just one click away to serve your need. Visit onestopbazaar.com or www.onestopbazaar.com. Feel the Indiana. Orin Media and Entertainment, the future of digital news and entertainment world. With evolving trends and rising popularity of the online market, our unique production will tick all the boxes in your playlist. We bring you binge-worthy videos that will blow your mind away. Something you just can't miss. Orin Media and Entertainment. Keep binging. ফিরে এলাম বিরতির পর। আমার সঙ্গে রয়েছেন গোর্খা জনমুক্তি মোর্চা প্রেসিডেন্ট বিনয় তামাং। বিনয়দাকে আরও একবার স্বাগত। যেটা আমার প্রশ্ন, যে আপনি এখনই বলছিলেন যে সিএম এর সঙ্গে আপনার অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ মিটিং হয়েছে উত্তরবঙ্গকে শান্ত রাখার। তো আপনার কি মনে হয় যে এই যে বিমল গুরুং আবার যদি পাহাড়ে যান, তাহলে কি শান্তি কোনোভাবে বিঘ্নিত হতে পারে? देखिए ऐसा है वो उनका प्रेजेंस জিটিএ বা পাহাড়ের উন্নয়নেও কি কোনো প্রভাব পড়বে উন্নয়নে? we are not from the intelligence bureau, we are not from the administrative side. देखिए अब उनका प्रेजेंस से वहाँ पे शांति अशांति होगा ये तो इंटेलिजेंस ही जानते हैं, उनको मालूम है और एडमिनिस्ट्रेशन को मालूम है। ये इसमें हम लोग कमेंट नहीं करते हैं। और उनका ऊपर में जो जितना भी संगीन आरोप है, जिन केसेस है 167 केसेस, उसमें यूएपीए भी है। नाउ इट्स ऑलरेडी सब जुडिशियस मैटर, ये ज्यूडिशरी का काम है। अगर ज्यूडिशरी अलाउ करेगा तो हम लोग का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन दे हैव टू गो थ्रू द ज्यूडिशरी। ओके, इतना ज़्यादा केसेस है
AK-47 वहाँ पे रिकवर किया, M16 राइफल रिकवर किया, ग्रेनेड किया, एक्सप्लोसिव किया, एक्सट्रैक्शन না का কিন্তু money। আপনি যেহেতু প্রেসিডেন্ট এখন, তো এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে আপনার কি মনে হচ্ছে যে পাহাড়ের উন্নয়নে বা জিটিএতে কোনো কি প্রভাব পড়বে বিমল গুরুং গেলে? देखिए हम लोग अनित और मैं चाहता हूँ कि वहाँ पे शांति बनाए रखे, और सेम मैडम ने भी कैटेगोरिकली उस मीटिंग में कहा कि इन फ्रंट ऑफ अदर्स कि बोथ ऑफ यू आर द गार्जियन ऑफ दार्जिलिंग हिल्स एंड द नॉर्थ बंगाल ऑल्सो। तो जब सेम मैडम ने इतना कहा तो हम लोग गार्जियन होने के नाते शांति बनाए रखने के लिए हम लोग कुछ भी करेंगे, जो मैडम ने हम लोग को बोल दिया है, तो एक गार्जियन होने के नाते हम लोग बनाए रखेंगे। लेकिन अगर बिमल गुरुंग का प्रेजेंस नॉर्थ बंगाल में हो गया, इसका देखना एडमिनिस्ट्रेशन का बात है, इसका देखना इंटेलिजेंस का बात है, और वहाँ पे जा भी सकते हैं, तो ये तो जुडिशरी मैटर है। सो आई एम नॉट इन पार्ट एंड पार्सल ऑफ जुडिशियल सिस्टम, आई एम नॉट द पार्ट एंड पार्सल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, आई एम नॉट द पार्ट एंड पार्सल ऑफ इंटेलिजेंस। सो यू कैन आस्क दिस क्वेश्चन टू एडमिनिस्ट्रेशन, यू कैन आस्क दिस क्वेश्चन टू জুডিশিয়ারি। না কিন্তু এতদিন বিমল গুরুং যেহেতু আত্মপ্রকাশ করেছিলেন, ছিলেন না জনসমক্ষে, তিনি আসছিলেন না, এবং হঠাৎ করে তার আত্মপ্রকাশ এবং তার জনসমর্থনে মিছিল পাহাড়ে, হ্যাঁ, শক্তি প্রদর্শন করার চেষ্টা করছে, এটা কি আপনার কাছে চিন্তার? आप बताइए, কারণ এতদিন আপনারা সামলেছেন, এতদিন আপনারা সামলেছেন। अभी आपने कहा, ये अब जस्ट टोल्ड मी कि उनका मिशिल हो गया है उनका फेवर में, कहाँ पे हो गया है एक दिखा दीजिए मेरे को। हाँ, इंडोर मीटिंग चल रहा है, इंडोर मीटिंग सभी जगह चल रहा है, 10 आदमी, 15 आदमी, 200 आदमी, 50 आदमी, 100 आदमी लेके। जो प्रोटेस्ट, पब्लिक का प्रोटेस्ट था वो स्ट्रीट में आया था, दूसरा आ गया था, उनका फेवर में नहीं, उनका अगेंस्ट में आया गया था। जो फेवर करने वाला है वो इंडोर है। तो आज आपको मैं बता दूँ, एक टाइम था जब बिमल गुरुंग वहाँ पे राज करता था, तब उनका मीटिंग में 40-50,000, 1 लाख एबव का आदमी आता था, ठीक है। अभी वो उनका पॉपुलैरिटी घटते घटते गया, अभी एक कम्युनिटी हॉल में जाके गया। अब एक कम्युनिटी हॉल में कितने होते हैं, 100-150 आदमी। अब वो 21 के बाद में, ये 21 अक्टूबर के बाद में कम्युनिटी हॉल से भी घट के अब किसी का घर में, किसी के मकान में बैठ के मीटिंग करना शुरू हो गया। तो तब तो उनका ग्राफ तो गिर गया ना। तो मिशेल तो नहीं हुआ वहाँ पे, प्रोटेस्ट रैली नहीं, मतलब फेवर रैली अभी तक नहीं हुआ है, अभी तक एज ऑफ नाउ हम लोग ने नहीं देखा है। आपने देखा होगा तो ठीक है, कहाँ पे है मेरे को पता नहीं है, लेकिन जो भी हो रहा है इंडोर मीटिंग, कम्युनिटी हॉल में हो, घर में हो, ऐसा हो रहा है। लेकिन जो प्रोटेस्ट मिशिल आ रहा है, रैली आ रहा है, वो स्ट्रीट में आ रहा है, वो आप देख लिया कि 20,000, 25,000, 40,000, 50,000 आदमी ना। मैंने आगे से ये प्रोग्राम का शुरुआत में कहा था कि पीपल्स वॉइस इज मोर इम्पोर्टेंट दैन लीडर वॉइस, ठीक है। आज पब्लिक का सेंटिमेंट क्या पे है, उनका ग्रीवियंसेस क्या है, उनका वॉइस क्या बोल रहे हैं, उनका वॉइस का डायरेक्शन का किस तरफ जा रहा है, किस डायरेक्शन में जा रहा है, वो देखना जरूरी है, गवर्नमेंट को भी, हम लोग को भी। কিন্তু আপনার কি মনে হচ্ছে পাহাড়ের মানুষ বিমল গুরুংকে চাইছেন না? देखिए, आप फिर घुमा फिरा के वहीं पे आते हैं, तो पब्लिक क्या चाहते हैं না, সেটা আপনি বুঝতে পারছেন না। পাবলিক क्या चाहता है? আপনি তো লিডার ना, আপনি গার্জিয়ান ना सभी। देखिए, मैं आपको आंसर दे दूँ, उससे आगे जो वीडियो क्लिपिंग आया है वहाँ से प्रोटेस्ट रैली का, वही आंसर देगा ना, वही आपका क्वेश्चन वही आंसर देगा, वो इन फेवर ऑफ बिमल गुरुंग और इन अगेंस्ट ऑफ बिमल गुरुंग। ये आप देख लीजिए, उसके हिसाब से आप पता कीजिए कि हाँ उनको वहाँ पे एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा, पब्लिक देखेगा। কিন্তু সিএম এর সঙ্গে বৈঠকের আপনার যে মিটিংটা ছিল, সেই মিটিং এর আগে আপনি যতটা গরম ছিলেন, মিটিং এর পর আপনি মনে হচ্ছে না যে একটু নরম? आप मेरा को गरम कैसे देखा फिर पता नहीं। मैं जब मेरा पिताजी गुजर गया था, तब मैंने पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ बंद किया था, ठीक है। अब 21 अक्टूबर से जब हम लोग 2 तारीख तक बिमल गुरुंग के बारे में मैं एक वर्ड बोला था, दार्जिलिंग से बोला था। আপনি তো অনেক কথাই বললেন যে হচ্ছে আমাদের সিলেবাসে নেই, বিমল কেন এসেছে, अनित जी का एक स्टेटमेंट आया था, लेकिन प्रेसिडेंट एज ए प्रेसिडेंट मैंने एक सिंगल वर्ड बोला था 21 तारीख के अपीयरेंस के बारे में, बिमल गुरुंग जी के बारे में, रोशनगिरी जी के बारे में नहीं बोला। और उसके बाद में हमारा एक स्पोक्स पर्सन है केशव राज पोखरेल, उन्होंने क्या कहा कि 1 तारीख को कहा,
1 तारीख को कि नाउ देयर इज गोइंग टू बी अ मीटिंग विद ऑनरेबल सीएम ऑन 3rd एंड आवर प्रेसिडेंट एंड जनरल सेक्रेटरी इज पार्टिसिपेटिंग, ये आ गया था सिंपल। उसके बाद में जब 2 तारीख में आ गया, जो एयरपोर्ट में, बागडोर एयरपोर्ट में आ गया, तब मीडिया का फ्रेंड्स लोग वहाँ पे था, मौजूद था। এয়ারপোর্টেও আপনি কলকাতা এয়ারপোর্টে নেবেও বিমল গুরুংয়ের সম্বন্ধে সুর চড়িয়েছিলেন। They have asked all these questions and I have broke my silence on that afternoon, evening only. 2 तारीख की इवनिंग से बोल, तो उसमें गुस्सा नहीं था ना, मैंने जो बोला वी आर नॉट गोइंग टू, वही आज भी आपके साथ में भी, आपका चैनल के मार्फत में भी यही बोल, अब रिपीटेडली मैं ये बोलने जा रहा हूँ कि वी आर नॉट गोइंग टू शेयर एनी पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव प्लेटफॉर्म विथ बिमल गुरुंग, रोशन गिरी एंड हिज ग्रुप। बस ये तो मैंने उस दिन भी कहा था और मीटिंग का आगे 3 तारीख के सुबह भी कहा था, कैलकाटा एयरपोर्ट में भी कहा, आज भी कहा, आफ्टर मीटिंग में मैंने ये कहा। तो इसलिए यही हमारा स्टैंड है। लेकिन आपने बोला कि मैं उस टाइम साउंडिंग কিন্তু মিটিং এর পর আফটার মিটিং আপনি একটু নরম, একটু শান্ত হয়ে গেছেন। না না शांत नहीं, ऐसा है ना, आप कैसे मेरे को, आप तो ऐसा है ना, ये थर्मोमीटर तो है नहीं आप कि मेरे को वो मरकरी आपका मेरा अब चला गया, नहीं अब चला गया, उसके बाद मीटिंग के बाद में नीचे चला गया। तो जिस मेरा बॉडी लैंग्वेज था, आपको बॉडी लैंग्वेज देखना चाहिए, मेरा फेशियल एक्सप्रेशन था 2 तारीख से आफ्टर मीटिंग तक आज तक, उसमें कोई चेंज है? अब हैदराबाद में टेस्ट करने के लिए भेज दीजिए वो लैब में उस सबको, तब पता चलेगा ये इसका कोई है। तो इसलिए तो मैं उस टाइम भी आई वॉज हैप्पी, उस टाइम भी खुश था, मैं आज भी खुश हूँ। ये है सेम मैडम ने हम लोग का ऊपर में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया है कि वो पीस रखने के लिए, वो हम लोग ज़रूर करेंगे। তৃণমূল বিমলকে নিয়ে তৃণমূলের যে স্ট্যান্ড পয়েন্ট, সেটাকে কি আপনি সমর্থন করেন? মানে আপনার কথা শুনে এখন মনে হচ্ছে আপনি সমর্থন করবেন। ना देखिए समर्थन का बात नहीं है ना, अब बिमल गुरुंग जी आए हुए हैं उनका अपना एजेंडा लेके, ठीक है। अभी तो एजेंडा तो एकटाई, सुनिए गोरखा लैंड, सुनिए, अब ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, हम लोग तो ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस में नहीं है, हम लोग तो अलायंस पार्टनर है, हमारा दूसरा पार्टी है। तभी भी आज तक সেই জন্য তো সমর্থন কথাটা बिमल আসছে। गुरुंग का अपीयरेंस से आज तक ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का कोई भी ऐसा लीडर ने ऑफिशियली प्रेस स्टेटमेंट दे के वी आर विद बिमल गुरुंग बोला है? ना, नहीं बोला है। হ্যাঁ সে বলেনি। वो साइलेंस जो है, इससे क्या आपको दे रहा है वो मैसेज, वो देखना चाहिए। हम लोग का मीटिंग गया है, आपको पता है, सभी को पता है, मीटिंग हो गया 40 मिनट्स का, वो भी पता है। मीटिंग आने के बाद भी हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, वो भी हम लोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया कि ऐसा ऐसा बात हो गया, कभी ना नहीं बोला, गवर्नमेंट की तरफ से भी ना नहीं बोला, AITC की तरफ से नहीं बोला, तो आपको सभी पता है। तो देखिए अब ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के बारे में हम लोग कैसे बोल सकते हैं? वी आर नॉट द पार्ट एंड पार्सल ऑफ। আপনি একজন পলিটিশিয়ান, আপনার নিশ্চয়ই একটা নিজস্ব মতামত থাকবে পলিটিক্স নিয়ে। ना देखिए, हम लोग अलायंस पार्टनर है, हम वी आर लिमिटेड इन 3 सीट्स ऑफ दार्जिलिंग हिल्स एंड यस वी डू अग्री इन सम ऑफ द एरियाज इन प्लेन्स, सिलगुड़ी प्लेन्स एंड डूअर्स। हम लोग को बोला है कि जितना भी गोरखा है उनके साथ में आप लोग तालमेल रखिए, तो आने वाला 2021 में हम लोग काम करेंगे, ऐसा है, बस उतना ही है, बस उससे बढ़कर अलायंस का। আচ্ছা, বিমল গুরুংয়ের যেই হঠাৎ করে তৃণমূলকে সমর্থন, বিজেপিকে ছেড়ে এতদিন বিজেপিকে সমর্থন করতে, এর পেছনে আপনার কি মনে হচ্ছে, কি সমীকরণ কাজ করছে? ना मैंने आगे बताया कि हम लोग ने 3 बरस आगे बीजेपी को छोड़ के आ गया और मतलब मैंने से मुलाकात किया और हाथ मिलाया, हैंडशेक किया। अब वो 3 बरस बाद आ रहा है, दैट मीन्स मैंने आप अभी बोला कि रोशन गिरी और बिमल गुरुंग मैच्योर्ड है या पॉलिटिक्स में और हम लोग मैच्योर्ड है, तो वो तो पता चलेगा। लेकिन হঠাৎ করে মানে দল বদল, মানে সমীকরণটা কি? अभी समीकरण यह है, उन्होंने क्या बोला उस 21 तारीख, आप भी था उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में होटल में, मैंने भी देखा कि देखिए बीजेपी से कोई होने वाला नहीं है, हम लोग इधर सीएम के साथ में आ गया और हम लोग तृणमूल कांग्रेस को आने वाला 2021 में सपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो उनका एजेंडा ये है, लेकिन हिडन एजेंडा क्या है कि देख लिया कि उनका ऊपर में इतना ज़्यादा केस है, तो वो अगेन दे वांट टू गो बैक टू दार्जिलिंग।
अब देखिए पार्टी तो तय नहीं करेगा, जुडिशरी सिस्टम को जाना ही होगा। देखिए हम लोग भी जेल जा चुका है। आज आप जाके अनित का, मेरा और मेरा लीडर का जो भी देखिए, पेंडिंग वारंट कुछ भी नहीं है, बट दे हैव गॉट सो मेनी 200 and above पेंडिंग वारंट आर देयर इन एवरी पुलिस स्टेशन। अब क्या करेंगे वो? अब वो थ्रू होके अगर जुडिशरी, ऑनरेबल हाई कोर्ट, ऑनरेबल कोर्ट अगर अलाउ करते हैं तो देखिए हम लोग का कुछ नहीं है। बट वी शुड रेस्पेक्ट द ऑनरेबल कोर्ट, वी शुड रेस्पेक्ट द जुडिशरी, ये तो हम लोग को मानना है। মানে আপনি বলতে যাচ্ছেন শুধু যেহেতু ওর এগেইনস্টে কেস রয়েছে সেই জন্যই ওর দল বদল, মানে রাজনৈতিকভাবে এর কোনো ভিত্তি নেই। हिडन एजेंडा वही है ना, अपना मोटिव होते हैं ना, अपने को सेफ रखने के लिए होते हैं। अभी गोरखा को सेफ नहीं, अपने आप को सेफ रखना है। अब अभी एक वर्ड आ गया विस्थापित, दैट मीन्स उसका साथ में जो भी है 3 बरस से उनको लाने के लिए आ गया बोल रहा है। मैं आई वॉन्ट टू आस्क मिस्टर बिमल गुरुंग एंड रोशन गिरी, what about that 8 supporters, they are still in the jail and they are supporting Bimal Gurung and Roshan Giri from the jail, ठीक है? और उसमें 4 आदमी पहाड़ का है, 4 डुअर्स का है। अच्छा, हाँ, वो क्या बोलेगा? अभी वो घूम रहे हैं यहाँ पे बिमल जी और रोशन गिरी जी। अब वो 8 आदमी अंदर जेल में है, उनके लिए कौन बोलेगा? फिर कौन बोलेगा? तो ये सब चीज़ है जो देखना चाहिए, सिर्फ अपना पर्सनल बेनिफिट के लिए हैंडशेक करना ठीक नहीं है, ठीक है? मैं नहीं मानता हूँ कि ये जो उन्होंने हाथ बढ़ाया हैंडशेक के लिए, दैट विल बी गोल्डन हैंडशेक नहीं है, गोल्डन हैंडशेक नहीं है। देखिए ही इज़ वेरी अपॉर्चुनिस्ट, तो देखना चाहिए। लेकिन आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन बिमल गुरुंग एंड रोशन गिरी रिगार्डिंग द वापसी ऑफ बिमल गुरुंग एंड रोशन गिरी। জুডিশিয়াল সিস্টেম ইজ দেয়ার, জুডিশিয়াল সিস্টেম। দাদা আমাদের সময় একদম শেষ, তবে আমার একটা শেষ প্রশ্ন আপনাকে করব, যে হচ্ছে এই যে হঠাৎ করে বিধানসভা নির্বাচনের ঠিক আগের মুহূর্তে বিমলের শিবির বদল, এটা রাজনৈতিকভাবে কোন দলকে সুবিধা করে দেবে, কোন পার্টিকে সুবিধা করে দেবে? अभी तक सभी ने पॉलिटिकल इक्वेशन देखा है, ठीक है? अभी तक आपने जो क्वेश्चन किया है वो इलेक्ट्रल इक्वेशन का बात कर रहे हैं। एज ऑफ नाउ मैंने जो भी देखा, जब यहाँ बंगाल में जो हो रहा है बिमल गुरुंग के अपीयरेंस के बाद में, तब আমি পাহাড় নিয়ে এখন শুধু বলছি না, পাহাড়কে মানে পাহাড়ের সমস্ত পুরো রাজ্যটাকেই বলছি, হ্যাঁ, যে কোন দলকে সুবিধা করে দেবে, কারণ যেহেতু বিজেপি এবার বাংলা দখলের মরিয়া চেষ্টা করছে। आई एम कमिंग टू योर क्वेश्चन कि देखिए आपने अभी इलेक्ट्रल इक्वेशन के बारे में क्वेश्चन रेज किया। अभी तक सभी ने बंगाल पॉलिटिक्स ने वो पॉलिटिकल इक्वेशन देख रहा है, ठीक है? बट वी हैव टू सी द इलेक्ट्रल इक्वेशन आल्सो एट द सेम टाइम। पॉलिटिकल इक्वेशन इज डिफरेंट देन इलेक्ट्रल इक्वेशन। तो 2021 का इलेक्शन इक्वेशन देखना चाहिए। एंड बिमल गुरुंग को अगर बंगाल में आके बैठना किसके लिए फ़ायदा होगा, किसके लिए नुकसान होगा, वो तो अपने आप वो पार्टी का जो उनका जो थिंकर्स है, ठीक है, थिंक टैंक है, वो लोग डिसाइड करेगा ना। मेरे को तो लगता है जिस पार्टी में बिमल गुरुंग जाएगा शायद लॉस ही हो जाएगा। থ্যাংক ইউ দাদা আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য। আমাদের সময় একদম শেষ, তাই শেষ করতেই হচ্ছে। তবে পরবর্তী মুখোমুখিতে কে থাকছে আমার সঙ্গে রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, তার জন্য অবশ্যই নজর রাখতে হবে আরোহী নিউজের ইউটিউব এবং ফেসবুক লিংকে। মুখোমুখি নিবেদন করলেন 3 স্টেপস এভিয়েশন একাডেমি, সহযোগী নিবেদক সিনহা গ্রুপ অফ কোম্পানিজ, OneStopBazaar.com, অরেঞ্জ মিডিয়া অ্যান্ড এন্টারটেনমেন্ট প্রাইভেট লিমিটেড, আরোহী ফাউন্ডেশন অফ ইন্ডিয়া।